Hello everybody, I am Navita Jain. Welcome to the session of computer networks. So today we will be discussing about the IP addressing. So whenever we are talking about IP addressing, it is a very important concept from examination point of view, as always there are some questions which are being asked from this topic. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करने के लिए unacademy.com/@janamita. Also you can follow me on Telegram. This is my email address and this is my YouTube channel. You can like, share and subscribe the channel, and this is my Facebook page. So let's start with the concept of the IP addressing. Let's see why it is very much useful. So Internet Protocol Address or IP address is a fundamental, I can say, networking concept which provides address assignment capability in a network. So for providing the address assignment capabilities in the network, this IP addressing is very much useful. So like this we can say it is a unique identifier जो uniquely identify करता है कंप्यूटर को, एक नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको, and we can say it as a logical address. Then it is a way to identify machines on the network and how the computers can be connected with one another on a network, and how the transfer of the files and the emails can be performed, like how the communication can be there between them. So for all these things IP addressing is very much useful. Then if we are seeing about the IP structure, we have two IP Internet Protocol version 4 and we have IPv6. तो अगर हम देखेंगे जो IPv4 है, it consists of your 32 bits. 32 bits का मतलब है 8 bits, 8 bits, 8 bits and 8 bits. तो यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है 11001000, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So like this we have 8 bits. तो ऐसे कॉम्बिनेशन में 8 बिट्स, फिर 8 बिट्स और फिर 8 बिट्स, तो हमारे पास टोटल कितनी बिट्स हो जाएंगी? इस तरह से 32 बिट्स हो जाएंगी. तो हर एक सेक्शन कितना बड़ा है? इट इज़ 8 बिट लॉन्ग, और हर एक सेक्शन की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक है. तो 0 का मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज़ 0 फाइनली, है ना. और 155 अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 155. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल इक्विवेलेंट. तो जब भी हम बात करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने की, सपोज आई एम कन्वर्टिंग दिस नंबर टू डेसिमल इक्विवेलेंट, सो वी ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट इट, लाइक 1 1 0 0 1 000. अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो इट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 and 7. तो 1 into 2 to the power 7 प्लस 1 into 2 to the power 6 प्लस 1 into 2 to the power 3. सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 200. तो ये इस तरह से आ जाएगा 200. इसकी वैल्यू है 10, इसकी है 20 और इसकी है 30. सो लाइक दिस वी कैन से in the dotted decimal notation it is 200.10.20.30. So like this it can be converted, and the 4 sections are simply said to be as your octets. Okay, now let's take one example for this. Suppose we have, this is one computer, this is another computer, then we can say this is your router, और ये आपका एक और कंप्यूटर है और ये आपका एक और कंप्यूटर है. ठीक है, अब हम इसका ईमेल IP एड्रेस देखते हैं 200.10.20.30. लेट अस कंसिडर दिस 200.10.20.31, and here it is 100.10.20.33, and here it is 100.10.20.30. तो अब देखिए जो बीच में राउटर लगा हुआ है ना, ये राउटर आपका कौन सी लेयर पे काम करता है? ये काम करता है आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर. ये जो राउटर है ये किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये वाले कंप्यूटर्स ये एक नेटवर्क के हैं और ये एक और नेटवर्क है, एज यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ IP एड्रेस, एंड दिस कैन बी कनेक्टेड वेरी इजीली बाय द हेल्प ऑफ दिस. ओके, सो वन मोर वी हैव एड्रेस दैट इज सिंपली सेड टू बी एज योर फिजिकल एड्रेस. तो जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर. द फिजिकल एड्रेस इज ऑन योर network interface card, and it gives our system a unique identity, but this address is exactly working on layer number 2. और layer number 2 कौन सी होती है वो सभी जानते हैं, वो होती है हमारी
डेटा लिंक लेयर। तो जब भी हमको कम्युनिकेट करना है फ्रॉम नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 2, फ्रॉम सपोज ये है मेरा नेटवर्क 1 और ये है मेरा नेटवर्क 2, and suppose if I want to communicate from network 1 to network 2, then at that time the devices are the layer 3 devices. layer 3 devices क्यों? क्योंकि ये जो राउटर है ये हमारा कौन सा डिवाइस है? इट इज़ अ layer 3 डिवाइस। ओके, अब देखिए जो 4 सेक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मशीन को और नेटवर्क को। तो मैंने सपोज ये बोला कि ये एक IP एड्रेस हमने यहाँ लिखा है, तो ये जो स्टार्टिंग का है ये बता रहा है नेटवर्क एड्रेस, और ये जो 30 है ये बता रहा है होस्ट को। And we have these different types over here, like we have assignment, classes, public and private, and then we have the version. तो सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट कैसे हो सकता है? इट कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी डायनेमिक। सो स्टैटिक सिंपली मीन्स ये जो एड्रेसेस होते हैं ये मैन्युअली असाइंड होते हैं कंप्यूटर को बाय द हेल्प ऑफ एडमिन, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक IP एड्रेस। फिर होते हैं हमारे पास में डायनेमिक IP एड्रेस, which are assigned either by the computer interface or by the host software itself, और इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है ये होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। Then we have the INA. INA is your Internet Assigned Number Authority, which oversees the global IP address allocation. अब जो भी IP एड्रेस allocate होते हैं उनके लिए हमारे पास जो अथॉरिटी होती है ये होती है INA. दिस इज़ रूट जोन मैनेजमेंट इन DNS. DNS वी ऑल नो, डोमेन नेम सिस्टम। जो भी आपका IP एड्रेस होता है, नंबर्स को रिमेंबर करना 200.10.20.30, ऐसे बहुत सारे नंबर्स को रिमेंबर करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट वी डू इज़ वी हैव द करस्पॉन्डिंग नेम। सपोज़ मैंने बोला कि एक मैं याद रखूँ yahoo.com और एक मैं याद रखूँ उसका पर्टिकुलर IP एड्रेस, तो नेम याद रखना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द नंबर। सो लाइक दिस द मैपिंग इज़ बीन डन फ्रॉम नंबर टू नेम, और ये काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम। देन इट परफॉर्म्स ऑल अदर IP रिलेटेड नंबर्स एंड द सिम्बल्स। और INA जो डिपार्टमेंट है इट इज़ ऑपरेटेड बाय ICANN। ओके, INA का क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INA, एंड मे बी दिस टाइम द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। तो ICANN होता है इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, एंड इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस INA एंड दी ICANN की जो INA है इट इज़ बीन ऑपरेटेड बाय दी ICANN। एंड नाउ लेट्स सी अबाउट द क्लासेस। तो वी हैव दीज वेरियस क्लासेस A, B, C, D एंड E, राइट। क्लास लेस एड्रेसिंग इसमें यूज़ नहीं हो रही है, अभी हम करेंगे क्लास फुल एड्रेसिंग विथ क्लास, एंड फिर बाद में हम करेंगे क्लास लेस एड्रेसिंग। तो ये क्लासेस हैं। जो A क्लास है इट इज़ रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, B फॉर द मीडियम कंपनीज, C फॉर स्मॉल कंपनीज, D is reserved for multicasting, which is basically one to many kind of the thing, and E is used for the future use. Okay. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्लास A है, तो यहाँ पे क्लास A लिया है 35.0.0.0. तो मैंने बोला ये वाला जो स्टार्टिंग का एक ऑक्टेट है ये है हमारा नेटवर्क, और ये जो पूरा है ये हो जाएगा हमारा होस्ट। क्लास B में इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो दो सेक्शंस हैं ये हो जाएंगे नेटवर्क, और ये दो जो सेक्शंस हैं ये हो जाएंगे हमारे होस्ट। सिमिलरली क्लास C में ये तीन हो जाएंगे हमारे नेटवर्क, और ये हो जाएगा हमारा होस्ट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें इस तरह से चलती हैं। इसको अभी हम और डिटेल में देखेंगे, वाई इज़ इट सो एंड हाउ वी कैन रिमेंबर दीज पर्टिकुलर्स। तो जो क्लास A होती है इट इज़ फ्रॉम 0 to 127। क्लास A चलेगी आपकी 0 से लेकर 127 तक, बट इसमें हम 0 और 127 को एग्जैक्टली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर बीन यूज फॉर द स्पेशल पर्पजेज़। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 126 जो होगा वहीं तक को यूज़ करेंगे। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द क्लास A। फिर अगर हम बात करेंगे क्लास B की, तो क्लास B रेंजेस फ्रॉम 128 to 191। तो ये क्लास B की रेंज होती है। इसी तरह से क्लास C की रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक। तो अभी जैसा हमने देखा था क्लास A में वी हैव 8 बिट्स। स्टार्टिंग के जो ये 8 बिट्स होते हैं ये होता है नेटवर्क पार्ट के अंदर, और जो बाकी बचे हुए 24 बिट्स हैं वो होता है हमारा होस्ट पार्ट। सिमिलरली क्लास B में 16 हो जाएंगे, क्लास C के अंदर
24 और 8 हो जाएंगे। तो इस दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर देयर फॉर द क्लासफुल IP एड्रेस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे IP एड्रेसिंग पार्ट नंबर 2 के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड विद मी लाइक दिस।